students, welcome back to Sophia Ma'am's channel, and today we are going to do the 9th class chapter 2 chemistry. Many students were facing problems in doing the numericals of these questions. So I came up with this video to show you the easiest way to do this numerical. So first of all, let's go with the formula. Here is the formula. First is mass by mass percentage of the solution. It is simply that is mass of the solute divided by the mass of the solution multiplied with the 100. Second, if the numerical is in volume, if the ml is given instead of gram, then we will use that formula. Mass of volume percentage of solution is equal to mass of the solute divided by volume of the solution into 100. There's nothing difference between these two formula. You only need to know the units. If the question is in ml, then we will use this formula, and if the question is in gram, then we will use this formula. Okay, and this question is always calculated in grams and ml. If it is in liter, you have to convert them into milliliter. If it is in liter, you have to convert that into ml, and if it is in kg, then you have to convert it into gram. So let's do with some numerical parts and stay tuned with it. At the end I will give you some questions to solve it out. तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स को बताएंगे. Now let's take one example. Here I have written one numerical question. The question is to make a saturated solution. Saturated solution means the solution in which no more solute can be added at a given temperature. एक ऐसा solution जिसमें और कोई solute dissolve नहीं हो सकता, उस solution को हम बोलते हैं saturated solution. तो एक saturated solution बनाना है जिसमें we are taking 36 gram of sodium chloride. So sodium chloride it is a solute. So what is given here? First of all, mass of sodium chloride. Sodium chloride is the common salt which you use at home in the vegetables. The mass of sodium chloride is given 36 gram. Okay. अब उसको क्या किया गया है? It is dissolved in 100 gram of water. It is written water, not it is written in solution. Water is a solvent. ठीक है? So this is solute. इसको हम लिख देती हूँ आपको समझने के लिए. This is solute. And it is dissolved in 100 gram of water. That is mass of water, that is solvent, is equal to कितना दे रखा है आपका? 100 ग्राम. ठीक है, 100 ग्राम दे रखा है. ओके. सो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है सॉल्यूशन कब बनता है? सॉल्यूशन तब बनता है जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते हैं. तो सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. So mass of solute is given 36 gram and mass of solvent is given 100 gram. So the total is 136 gram. So mass of solution हमने निकाल लिया. Mass of solution is mass of solute plus mass of solvent. तो mass of solute जो है हमारा mass of sodium chloride है, that is 36 gram, and mass of water is 100 gram. तो इन तीनों को अगर आप ऐड करते हो तो इसका आंसर आ जाएगा 136 gram. Now we have to calculate what? We have to calculate the mass percentage of the sodium chloride. Find its concentration at its temperature. किसका concentration? Sodium chloride का concentration. तो लिखेंगे percentage of sodium chloride. Percentage of sodium chloride. तो percentage of sodium chloride क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आपका क्या था? Mass of sodium chloride यानी mass of solute chloride divided by mass of solution into 100. तो mass of sodium chloride कितना दिया हुआ है बेटा? mass of sodium chloride दिया है 36. तो यहाँ पे हम 36 लिख देंगे divided by 136 into 100.
क्योंकि हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया है। यहाँ पे देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब इसको डिवाइड करेंगे आप सब, तो डिवाइड कीजिए आप, 2 से करेंगे पहले, 2 1 2, 2 8 16, करिए इसको, 2 6 12, 2 8 16, काटेंगे फिर से, 2 से काटते हैं, 2 9 2 2 2 3 6, 2 4, दैट इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 34। और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 26.47%। हमने कुछ नहीं किया है, इट्स अ सिंपल न्यूमेरिकल। वी हैव put all the values into the formula. Mass of sodium chloride already given 36 gram. Mass of solution we have calculated. Since solvent का वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया है, तो हम जब भी सॉल्यूशन बनाएंगे तो आपको पता है सॉल्यूशन तभी बनेगा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम ऐड ऑन करेंगे। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को हमने ऐड किया तो मास ऑफ सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, दैट इज 136 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड निकालेंगे, सेम फॉर्मूला पुट करा, मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 36 डाल दिया हमने, देन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन पुट कर दिया, देन इसको हमने सिंपल कैलकुलेशन किया कटिंग करके, एंड आंसर इज 26.47. Students, let's go with the second question. The second question is 0.5 gram of salt is dissolved in 25 gram of water. Calculate the percentage amount of the salt in solution. क्या क्या दिया हुआ है आप बताइए। Okay, so salt is a solute and water is a very good, what is a solvent? So write down mass of salt. Mass of salt is 0.5 gram and mass of what solvent कितना दे रखा है, water, mass of water given is 25 gram. Okay, so for calculation you need to make the mass of the solution. So make the mass of the solution. Mass of the solution क्या हो जाएगा बच्चे, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट आपका सॉल्ट है, तो सॉल्ट का मास ले लेंगे 0.5 ग्राम प्लस सॉल्वेंट का 25 ग्राम। और जब आप 25 को 0.5 से ऐड करेंगे तो द आंसर विल बी 25.5 ग्राम। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन लगाएंगे, अब व्हाट फॉर्मूला वी विल यूज बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज अमाउंट ऑफ द सॉल्ट इन द सॉल्यूशन। तो लिखोगे परसेंटेज ऑफ द सॉल्ट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू, क्या लगाएंगे फॉर्मूला, वेरी गुड, मास ऑफ द सॉल्ट, आगे बोलिए, मास ऑफ द सॉल्ट, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय mass of solution, good, into 100. क्लियर है यहाँ पे सबको। मास ऑफ सॉल्ट व्हाट इट इज गिवन, मास ऑफ द सॉल्ट इज गिवन 0.5, मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन 25.5 into 100। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे तो आपका हो जाएगा 5/25 into 100। काटिए 5 से, 5 1 से 5 कट गया और ये 5 51, तो आंसर इज 100 डिवाइडेड बाय 51। अब जब आप 100 को 51 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, व्हाट विल बी द आंसर, कैलकुलेट करिए। यस, द आंसर विल बी 1, बोलो, 0.96%. The answer will be 1.96%. If you have any doubt in this question, you may ask in the comment section. I will repeat this question again. Now, next question, question 3.
आई वॉन्ट टू गिव यू दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क, पर मैं नहीं दे रही क्योंकि इसमें कुछ एक ट्रिक्स है जो चेंज हो रहा है, जो मैं आपको सिखा देती हूँ अभी। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर, एक सॉल्यूशन है, यूरिया और वाटर को मिक्स किया गया है। अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर कंटेन्स 16 ग्राम ऑफ इट इन 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स यूरिया का अमाउंट कितना है, यूरिया का अमाउंट है 16 ग्राम, ठीक है, और सॉल्यूशन बनाया गया है टोटल सॉल्यूशन 120 ग्राम का। इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर इज नॉट गिवन, देखो आप ठीक से, इसमें ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है वाटर, हियर मास ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन, नॉट द मास ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब हम पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। व्हाट इज गिवन, मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया दे रखा है कितने बेटा आपको, 16 ग्राम, ठीक है। देन mass of solution is given here. Here direct question is given mass of solution. So you do not need to add the solute and the solution because here solvent is not given. Here totally mass of solution is given. So we don't need to do that step. Solution is equal to mass of the solute plus mass of the solvent because here solution का mass दिया हुआ है, solvent का mass नहीं दिया हुआ है, solution का तो mass दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 120 ग्राम। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करेंगे, परसेंटेज ऑफ यूरिया, परसेंटेज ऑफ यूरिया इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। करिए कैलकुलेट आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिए। तो मास ऑफ यूरिया दे रखा है आपका 16 एंड मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 120 इंटू 100 कर देते हैं। यहाँ पे हमने इन दोनों को ऐड नहीं किया क्योंकि हियर ऑलरेडी मास ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। अगर वाटर होता तो हम ऐड करते, हम सॉल्यूशन बनाते, बट हमें यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है, हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है। कट करेंगे, 0 0 कट दिया, 6 से काट 2 से काटते हैं, 2 6 जो 2 8 जो 3 देन 4, तो ये आपका हो गया 40/3। द आंसर विल बी 13.33%। Any doubt? If you have any doubt, you can ask in the comment section. Now students, this question is your homework. So please note it down and give me your answer in the comment section. Note करिए इसको. I'm giving you 3 seconds to write down. A solution has been prepared by mixing 5.6 ml of alcohol with 75 ml of water. Calculate the percentage by volume of alcohol in the solution. सब कुछ सेम है, बस फॉर्मूला में परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम लिख देंगे परसेंटेज ऑफ मास के बदले में, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। आप इसको करेंगे, इसको होमवर्क एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 20 ग्राम ऑफ शुगर इन 500 ml of water. कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द ग्लूकोज एंड शुगर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आपको आ जाना चाहिए, बट बच्चे यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे दो सॉल्यूट दिया हुआ है ना, तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। पहले सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो लिखिए, तो आंसर लिखिए इसका। सबसे पहले क्या क्या गिवन है, गिवन है आपका मास ऑफ ग्लूकोज, कितना दे रखा है, mass of glucose is 30 gram. Then mass of sugar, mass of sugar is given 20 gram. Then volume of water, चूंकि ये ml में लिखा है ना इसलिए हम वॉल्यूम लिख देते हैं, अदरवाइज आप मास भी लिख सकते हो। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 500 ml। तो हमें शुगर और ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो इससे पहले हमें क्या करना होगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन भी निकालना होगा। चलिए मास ऑफ द सॉल्यूशन निकालते हैं।
मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब जो मैंने सॉल्यूशन तैयार किया है उसमें मेरे पास ग्लूकोज भी है, उसमें मेरे पास शुगर भी है और उसमें मेरे पास वाटर भी है, तो हम तीनों को ही कंबाइन करेंगे। देखिए, मास ऑफ ग्लूकोज प्लस मास ऑफ शुगर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए, तो मास ऑफ ग्लूकोज क्या हो गया आपके पास 30, मास ऑफ शुगर 20 एंड मास ऑफ वाटर 500। तो इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो 50 प्लस 500 इज इक्वल टू 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेट हमारे पास आ गया 550 ग्राम। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। तो पहले हम परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज निकालते हैं। मैं यहाँ थोड़ा डिवाइड कर देती हूँ ताकि आपको, एक मिनट, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज फॉर्मूला सेम है, क्या लिखेंगे, मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। करिए, मास ऑफ ग्लूकोज कितना है आपके पास 30, मास ऑफ सॉल्यूशन वी हैव 550 इंटू 100। 0 से 0 काट दीजिए, देन 5 2 जो, तो ये हो गया आपका 60 अपॉन में 11। चलिए डिवाइड करिए, 60 अपॉन में 11 कितना आएगा, 60 अपॉन में 11 अगर आप करते हो तो ये आपका आ जाएगा 5.4 ग्राम आना चाहिए, 5.45% आपका आ जाएगा। इसको डिवाइड करके चेक करेंगे, 60 अपॉन में 11 इज इक्वल टू 5.45। नाउ सिमिलरली आपको मास ऑफ द शुगर निकालना है, तो मास ऑफ द शुगर निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ द शुगर। तो परसेंटेज ऑफ शुगर के लिए भी सेम फॉर्मूला है, क्या लिखेंगे, मास ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो मास ऑफ शुगर आप लिख लीजिए, मास ऑफ शुगर इज गिवन 20, मास ऑफ सॉल्यूशन 550 इंटू 100, 0 0 कट गया, 5 2 जो, तो ये हो गया आपका 40 अपॉन में 11, तो ये आपका आ जाएगा 3.63% के अराउंड। ठीक है, चेक करिए आप लोग इसको कैलकुलेट करके। सो परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इज 5.45, परसेंटेज ऑफ शुगर इज 3.63%। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, पहले पढ़ लेते हैं फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। Calculate the mass of sodium sulfate. Here sodium sulfate is the solute required to prepare its 20% mass percent दिया हुआ है solution in 100 ग्राम of water। ठीक है, यहाँ पे solution का मास भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ मास ऑफ द सॉल्यूट भी नहीं दिया हुआ है, और आपको ये कैलकुलेट करना है मास ऑफ द सोडियम सल्फेट, दैट इज द मास ऑफ द सॉल्यूट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मास ऑफ सोडियम सल्फेट, मास ऑफ सोडियम सल्फेट इज इक्वल टू x। हम सोडियम सल्फेट को x लेट करते हैं, हमें नहीं पता सॉल्यूट की वैल्यू, हमें नहीं पता, तो लेट्स द मास ऑफ सोडियम सल्फेट इज x। ओके, मास ऑफ वाटर इज गिवन, दैट इज सॉल्वेंट इज गिवन, कितना दे रखा है 100 ग्राम। ओके, नोट डाउन 100 ग्राम, ये है x ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी 100, मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है बेटा, मास ऑफ सॉलिड सोडियम सल्फेट है तो x प्लस 100, ये आपका हो गया मास ऑफ द
solution. Now here mass percentage is also given. Mass percentage of क्या? Mass percentage of sodium sulfate. Mass percentage of sodium sulfate is given. कितना दे रखा है? 20%. So हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ द सॉल्यूट. फॉर्मूला लिखते हैं सेम. परसेंटेज ऑफ सोडियम सल्फेट इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम सल्फेट. छोटा ज़्यादा चला गया क्या? एक मिनट. mass percentage of sodium sulfate is equal to mass of solute, mass of sodium sulfate divided by mass of solution into 100. तो मास ऑफ सोडियम सल्फेट कितना दिया हुआ है बच्चे? मास ऑफ सोडियम सल्फेट दे रखा है x, हमें नहीं पता, ठीक है. और मास ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाल रखा है x प्लस 100. और मास ऑफ सोडियम का परसेंटेज दे रखा है, मास परसेंटेज 20. तो हम यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करेंगे, जस्ट हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे इंटू 100 भी है. तो ये हो जाएगा आपका 100x इज इक्वल टू 20x प्लस 100. ठीक है, x प्लस 100. तो ये आपका हो गया 100x इज इक्वल टू 20x प्लस 2000. तो 100x माइनस 20x इज इक्वल टू 2000. 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20 आपका 80x हो जाएगा. तो 80x इज इक्वल टू 2000. तो x इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 80. तो 0 0, फिर 2 से काटिए, 2 4 जा 100, देन 4 1 जा 25. आंसर विल बी 25%. तो आप sorry not percentage, it is gram, because we are calculating the mass of the solute. तो मास का यूनिट हमेशा ग्राम में होगा. हमें यहाँ परसेंटेज दिया हुआ था, we didn't need to calculate the percentage, we have to calculate the grams, we have to calculate the mass of the solute and the unit of mass is gram. तो हम ग्राम ले लेंगे. इसके बाद मैं अभी आपको एक और क्वेश्चन होमवर्क दूंगी, आप उसको होमवर्क करेंगे. इट इज थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा टफ, बट अगर आपने वो कर लिया तो मैं समझूंगी कि मैंने जितना भी आपको न्यूमेरिकल समझाया है वो आपको समझ में आ गया है. नाउ स्टूडेंट्स, द फाइनल क्वेश्चन, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क नोटबुक, और आप किसी में भी कर सकते हैं. दिस इज योर होमवर्क, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. आई होप आपको कुछ समझ में आ गया होगा. अगर थोड़ा सा भी समझ में आ गया है तो इट विल बी ग्रेटफुल. नोट कर लीजिए क्वेश्चन. आप सब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, आप लगाइए, और अगर आंसर आ जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए. नोट डाउन कर लीजिए.